Hello students, in previous video we have learned that how to measure a given line segment. And to measure a line segment what we need is a scale, or you can say a centimeter scale. So we have started worksheet number 4 based on it, and we have done two questions, that is question number 1 and 2. Now the third question is compare the given sets of line segment by measuring them using a scale. So you can see here the line segments are given AB and CD in A part, and PQ and XY in B part, and PQ and RS in C part. What we have to do is we have to measure their lengths first. Suppose A part में AB and CD की lines जो लेंथ है वो हम मेजर करेंगे, एंड देन वी विल कंपेयर देम विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर, राइट. So first of all, let us measure the length of the line segments. So you know two scales are given. One is your centimeter, another is your inches. So कौन सा हम यूज करेंगे? That is centimeter scale, right? So लाइन सेगमेंट हम कैसे मेजर करते हैं? 0 को हम कहाँ रखेंगे? 1 पॉइंट पे, एंड देन सेकेंड पॉइंट को हम मेजर करेंगे कि कहाँ पर है वो हमारा, राइट. सो वी विल कीप इट हेयर 0, एंड दूसरी साइड को हमारा कहाँ पर है? ऑन 4. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? AB is 4 centimeter, right? Next, measure the length of CD. So 0 पे हम फर्स्ट पॉइंट को एंड सेकंड पॉइंट को हम let us measure it. So it is more than 4. It is 4.2 centimeter. So the length is 4.2 centimeter, right? So AB is 4 centimeter and the length of CD is 4.2 centimeter. So which one is greater? 4.2 centimeter. CD is greater. Or you can say AB is less than CD, right? Now let us measure the next line segment, that is PQ. So what is the length of PQ? That is again, it is 4 centimeter, and let us measure the length of this line segment, that is 3.5 centimeter. So this is 4 centimeter and this is 3.5 centimeter. So here PQ is 4 centimeter and XY is 3.5. So PQ is greater than XY, right? Or XY is less than PQ. Now PQ and RS, let us measure them. So PQ is again 3.5 centimeter. What is the length of PQ? That is 3.5 centimeter. And what is the length of RS? So here RS is again 3.5 centimeter. So the length of PQ and RS are equal, right? The length of PQ and RS are equal. So in this way we can measure and compare the given line segments. Now our next topic is constructing line segments of given length. So अभी तक हमने सीखा कि कैसे मेजर करेंगे, राइट? उनके लेंथ्स को मेजर करेंगे. नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ, कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट को, राइट? सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल place your ruler on a page with your sharp pencil ready. So what we need is a sharp pencil. So हमारी पेंसिल कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल sharp. Secondly, now mark the first point
एक पॉइंट मार्क करेंगे अगेंस्ट द जीरो। जो भी हमारा जीरो है, जैसे हमने लाइन सेगमेंट मेजर करते हुए हम किससे स्टार्ट, 1 पॉइंट को हम कहाँ रखते हैं, जीरो पे रखते हैं। तो हम जीरो पे ही हम पॉइंट मार्क करेंगे, राइट। जो हमारा जीरो है उसके सामने पॉइंट मार्क करेंगे, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, राइट। एंड देन नेक्स्ट मार्क, और यू कैन से सेकेंड मार्क point B against the mark representing the 5 big division 7 सब डिवीजन। सो ये हम कौन कितना मेजर की वो कर रहे हैं हम लोग, 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम कौन से लेंथ, कितनी लेंथ का लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज 5.7 सेंटीमीटर। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा बी, वो कहाँ पर होना चाहिए। सो हम 1 2 3 4 5 तो हम कंप्लीट लेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास, 7। सो दैट मीन्स हमारे 7 सब डिविजन्स हम यूज करेंगे। सो 7 सब डिविजन्स कहाँ पर आते हैं, 1 2 3 4 5। सो ये 5 हो गया हमारा, ये जो लॉन्ग लाइन आती है 5 की होती है, उसका 6 7, तो 7 पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। सो देन ड्रॉ अ लाइन। सो लेट अस ड्रॉ some line segments. So draw the line segments of the following lengths and name them. Right? So हम ये draw करेंगे line segments. So let us start with worksheet number 5 and question number 1. What we have to do is we have to draw line segments and name them. So A part is 5 centimeter. So how we can construct a line segment of 5 centimeter. So what we have to do is, first of all, place the ruler on the page. पेज पे हम रखेंगे रूलर को, राइट। अब इस रूलर पे हमने पेंसिल को कहाँ पर रखना है, जीरो पे। कहाँ पर पॉइंट मार्क करना है, जीरो पे, राइट। जीरो पे हम पॉइंट मार्क करेंगे। अब हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये लिखा हुआ भी है 5। 5 डिवीजन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 5 डिवीजन। यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट मार्क करेंगे, राइट। एंड देन नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। नाउ 2 things you have to keep it in mind. First thing is your pencil should be sharp. सेकेंड, जब हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, तो हमारा जो रूलर है या स्केल यू कैन से, वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। जब हमने एक बार उसको रख दिया, पॉइंट लगा दिया, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू नेम इट ऑल नेम। सो इसको आप कोई भी लेटर्स से नेम दे सकते हैं। सपोज MN मैंने दे दिया MN। आप इसको AB भी दे सकते हैं, XY भी दे सकते हैं, PQ भी दे सकते हैं। जो भी आपके मन में लेटर्स आ रहे हैं, उन लेटर्स से आप इनको नेम दे सकते हैं। एक लेटर को आप 1 एंड पॉइंट पे और दूसरे लेटर को आप सेकेंड एंड पॉइंट पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर B, that is 7 centimeter. So let us draw a line segment of 7 centimeter. So हमने क्या करना है, सबसे पहले स्केल को रखेंगे हम पेज पे, एंड देन जीरो पर पॉइंट मार्क होगा हमारा। पॉइंट मार्क किया, उसके बाद हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमारा 7 सेंटीमीटर कहाँ गया, हेयर इट इज 7 सेंटीमीटर। तो सेकेंड मार्क हमारा होगा 7 सेंटीमीटर पे, राइट। यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड नेम इट। सो सपोज मैंने नेम दिया इसको AB। सो AB इज इक्वल टू 7 centimeter and here MN is equal to 5 centimeter. Now let us draw the line segment of 4.5 centimeter. D part हम करेंगे, D 4.5 centimeter. So how to draw a line segment of 4.5 centimeter? Again ruler रखा हमने,
0 पॉइंट पर पॉइंट मार्क किया, राइट, यहाँ पर मार्क कर लिया हमने पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट हमारा कहाँ आना चाहिए, 4.5। सो व्हाट इज 4.5? 4 तो पूरा हमारे 4 डिविजन्स हो गए हमारे, राइट। बिग डिविजन्स जो हो गए कितने होंगे हमारे 4, और ये स्मॉल डिविजन्स कितने होंगे हमारे, पॉइंट के आगे कितना है 5। सो 4 के आगे हम 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये बिग लाइन होती है यहाँ पर 4 एंड 5 के बीच में, दैट इज 0.5। सो यहाँ पर हम मार्क करेंगे सेकेंड पॉइंट 4.5। तो यहाँ से हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे 4.5। सो दिस line segment is of 4.5 centimeter and now name it, कुछ भी नाम देंगे, x y। so x y is equal to 4.5 centimeter. Now let us draw a line segment of 9.2 centimeter. 9.2 centimeter, that is E part, 9.2 centimeter. अगेन पहला फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर होगा हमारा, 0 पे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 9 बिग डिविजन्स, तो यहाँ पर आएगा आपका 9, कहाँ पर है हमारे, यहाँ पर 9, यू कैन सी हियर 9। एंड देन जो हमारे सब डिविजन्स हैं वो कितने होने चाहिए, पॉइंट के आगे कितना है हमारा 2। सो 9 पूरे हो गए। 9 के बाद हम 2 काउंट करेंगे स्मॉल डिविजन्स, 1 2। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट will come over here. This is 9.9, यहाँ पर क्या है 9 और इसके आगे 2, जो 0.2 है वो कितने हो गए 2 स्मॉल डिविजन्स 2। सो यहाँ पर हमारा मार्क हो गया। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे, ज्वाइन करेंगे ये दोनों पॉइंट्स को, राइट। सो 9.2 सेंटीमीटर एंड नेम इट, हम कुछ भी नेम देंगे लाइक PQ, PQ। So PQ is equal to 9.2 centimeters. So in this way we can draw given line segments, right? Now the next question, that is question number 2. Here draw the following line segments. The question is same जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, and that we have to draw a line and name it. Name हमने खुद देना था। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद नेम हमने दिया उसको, जो हमारा मन किया हमने वो नेम दिया। बट इन सेकंड क्वेश्चन द नेम इज ऑलरेडी गिवन, नेम इज ऑलरेडी गिवन AB। AB is the name of the line segment and we have to draw it, right? So let us do this question. Question number 2, draw the following line segment. हमें यहाँ पर नेम नहीं देना है, नेम इज ऑलरेडी गिवन। So suppose A part, AB is equal to 3 centimeter. So first of all draw a line segment of 3 centimeter. Here 3 centimeter, 0 पे point, then 3 पे point, right? And join them. This is 3 centimeter, right? Now यहाँ पर नेम हमने अपने चॉइस से नहीं दे सकते, नेम इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज AB। तो हम यहाँ पर क्या नेम देंगे, AB, दैट इज 3 सेंटीमीटर, राइट। नेम ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ इस पे लिखना है। नेक्स्ट इज सपोज B पार्ट, XY is equal to 9.1 centimeter. So let us draw line segment of 9.1 centimeter. So here 0 पे point, and then 9.9, here is 9 and 9.1, 0.1 means 1 small division, so point will come here। इन दोनों points को हमने join किया, right? So this line segment is of 9.1 centimeter. Okay, complete हो गया question? No, because we have to write XY, XY, now it is complete because नेम ऑलरेडी गिवन था तो हमने ये नेम दिया। C पार्ट MN is equal to 7.3 centimeter. So draw a line segment of 7.3 centimeter. So 0 पे point mark किया and then 7 big divisions and
पॉइंट के बाद क्या है 3, तो 3 स्मॉल डिविजन, 7 के आगे 3 स्मॉल डिविजन्स 1 2 3, सो हियर इट इज 3। सो अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे 7.3। So this is 7.3 centimeter. This line segment is 7.3 centimeter. Name it MN. MN. So in this way we can draw given line segments. So in next video we will discuss the brain teasers of this unit. Thank you.